हेलो 9th क्लास। अब हम लोग जो है हमारे चैप्टर जो पढ़ रहे थे चैप्टर 6 टिश्यू हम पढ़ रहे थे। टिश्यू से पहले हमने मतलब बाकी एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू एंड वेयर दे आर फाउंड एंड व्हाट आर देयर फंक्शन एंड हाउ दे लुक लाइक। इसमें हम पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली स्पेस्ड and embedded in the intercellular matrix. There always a intercellular matrix is present between the cells. That says that why the cells of connective tissue mainly they are loosely spaced. They are एक दूसरे से थोड़े लूज होते हैं, दूर होते हैं। दूसरा इनमें ये होता है कि ये एम्बेडेड होते हैं। इंटरसेलुलर सेलुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं उनके बीच में कुछ गैप होता है जहाँ पे किसी टाइप के सेल्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लूइड टाइप मैट्रिक्स पाए जाते हैं तो कि इन सेल्स को बांध के रखते हैं। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक एंड फ्लूइड डेंस। मैट्रिक्स जो होती है वो मोस्टली जेली लाइक हो सकती हैं और फ्लूइड टाइप में भी पाई जाती हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर द ब्लड, बोन्स, cartilages, tendons, ligament, areolar. This all are the examples of the connective tissue. As we all know, blood consists of a plasma, and plasma is the type. Blood is the main type of a connective tissue, which connects in which the plasma is found. Plasma is the fluid part of the blood, and it consists of RBCs, WBCs, and platelets. These RBCs, WBCs, and platelets are found in the blood, and they have their different functions. What are the main function of the bloods? Mainly the blood has to transport gases, digested food, hormones and the waste material of our body from one part to another part. So these are the main function of the blood. After that, next connective tissue is bone. As we all know, bone forms a framework. What does framework means? Framework means a bone forms a network in our body. It connects the different bonds from each other and forms a complete network and provide support to our body so that our body becomes strong and we can do our other functions. So bones provide us strongness, strength, and also they are strong and non-flexible. Bones cannot be flexible, they are not flexible, they cannot be bent. As we know that bones जो होती हैं उन्हें फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क बनाती हैं सारी बोन्स के बीच में। ये जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, आप इनको अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते, ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। नेक्स्ट जो होते हैं उसके अलावा जैसे अगर हम दो बोन्स की बात करें तो दो बोन्स जैसे कि हम जानते हैं, हमने आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बॉल सॉकेट जॉइंट्स एंड अदर हिंज जॉइंट्स। ये सारे जॉइंट्स क्या होते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं। जब टू बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो जिस चीज़ के वो थ्रू वो कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। So the ligaments are the main cells or main part which connects the two bones with each other. After ligament there is a tendons. Tendons, what are tendons? Tendons connect muscles to bone. Muscles to bone. Who connects muscles to bone? Tendons connects the muscles to bone. Next that is a cartilages. Cartilages are soft cells which are mostly found in nose, ear and trachea. This type of bone is they are literally you can bend them but slowly, not you can fully do not bend them fully, but the muscle part of the cartilage you can fold them, you can bend them. After that is a areolar. Areolar, where does areolar present? Areolar is present in between the skin and the muscles. Skin and muscles and the bone marrows, blood vessels. These are the different areas where areolar tissues are present. So this is all about the connective tissue in which we have learned about the blood, bones, tendons, cartilages and areolar. After connective tissue, our next thing is a muscular tissue. The main structure of the muscular tissue are their elongated cells. Elongated cells means they are long cells, cylindrical form, they are long, and this elongated cells are also known as muscle fibers. Muscular tissue cells are also known as muscle fibers because they consist of a elongated cell, long cells, and they help in the movement of the body. मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो elongated होते हैं और ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। उसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, इनके बीच में स्पेस पाई जाती है, एक प्रोटीन पाया जाता है इन मसल्स के अंदर। जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मसल्स फाइबर्स हैं, इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है ये इन मसल्स में पाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है, जो कि मसल्स को एक दूसरे के पास लेके आता है, खींचता है और उनको रिलैक्स भी करता है। नेक्स्ट जो है उसके बाद आते हैं इसमें वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल। Voluntary muscles are those muscles which can be moved according to ourselves. We can move them, we can stop them as we want. And they are also known as skeletal muscles. They are also known by the different names, that is skeletal muscles, because they consist of different type of, we can stop them according to our, and they connect with the bones and help in the movement. That's why they are also known as skeletal muscles. जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू में वॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, वो मसल्स जिनको हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे हैंड्स हैं, हम उनको अपने हिसाब से किधर भी मोड़ सकते हैं, लेग्स हैं उनको मोड़ सकते हैं। तो ये जो टिश्यूज़ हैं हमारे, ये जो बोन्स हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो वो सारे सेल्स, वो सारे टिश्यूज़ जिनको हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, वो हमारे वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। उसके अलावा इन वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है स्केलेटल मसल्स? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो बोन्स हैं उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। बोन्स के साथ कनेक्ट होने की वजह से और ये बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनका, अगर हम देखते हैं कि अगर हम वॉलेंट्री मसल्स को, वी सी वॉलेंट्री मसल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, देन वी कैन फाइंड दैट दे आर फ्रॉम द लाइट एंड द डार्क बैंड्स, and they also get stained. That's why they are called as stained muscles. Staining or they observe the staining, that's why they are known as stained muscles. And they are normally, the tissue of these cells are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. Multinucleated means a cells or tissue which consist of more than one nucleus. They consist 2 nucleus, 3 nucleus or many more type of nucleus. Okay, after that the next is the involuntary muscles. Involuntary muscles are those muscles which cannot move by ourselves, according to ourselves. They move according to their function and their work, like the muscles of the iris of the eyes, in urethras and bronchus of the lungs. They are mainly the cells of this involuntary muscles are long, pointed, they can pointed and long with the pointed ends. Uninucleated means it contains only one nucleus in it, and unstrained, it means unstrained, it means they does not stain, they does not absorb the stain when it put under the microscope. तो इन्वॉलेंट्री मसल्स क्या हो जाते हैं कि इनमें क्या होता है कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो लाइट और डार्क बैंड्स की तरह हमें दिखाई देते हैं, और जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं तो ये स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको स्टेन्ड मसल्स भी बोला जाता है। ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें ब्रांचेस नहीं बनी हुई होती। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है, इनका जैसा होता है, जैसे हमारी आइज़ हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हार्ट है, ये सारे क्या हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री टिश्यूज से कनेक्टेड है। तो ये अपना वर्क अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, हमारे ऑर्डर पे नहीं करते। इनके जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लेकिन लास्ट में पॉइंटेड एंड होता है, मतलब लास्ट में शार्प होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। अनस्टेन्ड होते हैं, किसी भी टाइप का स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करते। सेकेंड, इसके बाद आते हैं कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल आर मोस्टली रिलेटेड टू द हार्ट्स बिकॉज आर हार्ट शो अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दैट रिदमिक साइकिल इज नोन एज the muscles which show that rhythmic cycle is known as cardiac muscles, and these cardiac muscles are mainly cylindrical, branched and uninucleated. As all these diagrams are given on your page number 76, you can see that there are the first picture is the strained muscles, which is also known as voluntary muscles. Second is the smooth muscles, and third is the cardiac muscles. These 3 diagrams are given here. You have to draw these 3 diagrams according to their topic, related to their topic, where you have write about the these tissues. When you write about the strained muscles, voluntary muscles, you have to draw this diagram near that, other than the next diagram to the next topic. And this is the cardiac muscle, so you have to draw this diagram near the cardiac muscle tissues. After that, our next thing is the nervous tissue. In nervous tissue, they are highly specialized, and mainly these are found around, they forms a combination, and they are connected to composed
These tissues are composed in the brain's spinal cord and the nerves. They forms this combination by the nervous tissue. The main function of the nervous tissue is this: they rapidly form this, speedily transfer the stimuli from one portion to the another portion, and the cells which are found in this nervous tissue are known as nerve cells or neurons. This neuron mainly composed of they mainly consist of three structures in its cell body, which consist of nucleus and cytoplasm, and also axon and dendrite. What is axon? Axon is the long thread-like structure found in the neuron structure, and small branches like structure come from its around it, that is dendrites. As the picture is given in your book, that we can say that the different tissues, डिफरेंट सेल्स विच आर फाउंड इन द, अब हम ये कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू जो होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल तरीके से वर्क करते हैं. आप लोगों को पता होगा कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे पूरे ब्रेन में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. हम किसी भी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को जब छूते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें इंस्टेंट सिग्नल देता है कि हमें हमारा हाथ वहाँ से रिमूव करता है. तो ये जो सेकंड्स में हमें वार्निंग्स मिलती हैं, हमें ये सिग्नल्स मिलते हैं कि हम अपने हैंड को इनको रिमूव कर सकें जब हम गर्म चीज़ों को टच करते हैं, तो वो किस वजह से होता है? वो वर्क होता है नर्वस सेल्स के वजह से, नर्वस टिश्यूज़ के वजह से, क्योंकि इनका ही मेन फंक्शन होता है कि ये हमें स्पीडली वो रिस्पॉन्स हमें देते हैं कि आपको इस जगह से अपना हाथ इस तरीके से रिमूव करना है. इसके जो नर्व सेल्स होते हैं वो मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं. इसमें न्यूरॉन, नर्व सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तीन चीज़ों से बने होते हैं. मतलब क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल बॉडी होती है और इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है एंड इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है. उसके अलावा एक्सोन एंड डेंड्राइट्स भी पाए जाते हैं. जैसे कि आप लोगों के इसमें डायग्राम दे रखा है, न्यूरॉन यूनिट ऑफ अ नर्वस टिश्यू. एक सिंगल नर्वस टिश्यू की यहाँ पे पिक्चर दे रखी है. इसमें क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ये पूरा जो पोर्शन है थ्रेड लाइक नीचे का जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सोन बोलते हैं. एंड ये जो पूरा एक्सोन है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? जो राउंड बॉडी है, ऊपर जो टाइप की बॉडी बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं. और इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है. और उसके अलावा क्या होता है? इसमें से ये ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको डेंड्राइट्स बोला जाता है. उसके अलावा नर्व इम्पल्स होते हैं. किसी भी टाइप का सिग्नल जो हमारा ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं. ये अपने ही अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं. इनका अपना खुद का एक फंक्शन होता है. ये हमारी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं. इनको हम, मतलब कि हम ह्यूमंस इनको ऑर्डर नहीं देते, जैसे कि हमारे लेग्स को, हमारे हैंड्स को, हमारे माउथ को हम ऑर्डर देते हैं. पर हमारे जो नर्व सेल्स हैं और हमारे जो बाकी सेल्स हैं ये इनवॉलेंट्री टिश्यूज़ होते हैं जो कि इनके ही हिसाब से काम करते हैं. और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, टिश्यू चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है. आप लोगों का वर्क है आपको ये चैप्टर एक बार पूरा कंप्लीटली अपनी बुक से लाइन टू लाइन रीड करना है. अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं क्लासरूम कमेंट बॉक्स में. उसके अलावा आपका नेक्स्ट वर्क ये है कि आपको जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बोर्ड पे करवाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी डायग्राम्स हैं वो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं. जैसे कि आपको अभी हमने नर्व टिश्यू पढ़ा है, नर्व टिश्यू के पास में आपको ये न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है ताकि आप जब भी इसको रीड करें आपको समझ आए कि न्यूरॉन किस टाइप का होता है. थैंक यू.